Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today we will learn about pronoun and its kind. So let us start. Now let us start with our first topic, that is pronoun. A pronoun is a word which is used in a place of a noun. Pronoun वो words होते हैं जो noun की जगह पर यूज किए जाते हैं. प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहा जाता है. एग्जाम्पल नंबर 1, शी इज गोइंग टू टेम्पल. हियर शी वर्ड इज अ प्रोनाउन. एग्जाम्पल नंबर 2, ही इज टेकिंग बाथ. हियर ही वर्ड इज ऑल्सो अ प्रोनाउन. नाउ सी द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. फर्स्ट, पर्सनल प्रोनाउन. सेकेंड, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. थर्ड, रिलेटिव प्रोनाउन. Fourth, interrogative pronoun. Fifth, indefinite pronoun. Sixth, reflexive pronoun. Seventh, distributive pronoun. And eighth, reciprocal pronoun. Let us see first kind, that is personal pronoun. Words used in place of noun referring to people. वो words जो noun की जगह पर यूज किए जाते हैं किसको रेफर करके? persons को. पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है. पर्सनल प्रोनाउन के 3 टाइप भी होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन. मैं आपको एक चार्ट देती हूँ, उसे देख के आपको इन्हें समझ में आ जाएगा. लेट अस सी इट्स सेकेंड काइंड, दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. द वर्ड्स यूज्ड फॉर नाउन टू पॉइंट आउट ऑब्जेक्ट्स. वो वर्ड्स जो नाउन के लिए यूज किए जाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने के लिए. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल वर्ड्स दिस, दैट, दीज, दोस, एटसेट्रा. एग्जाम्पल नंबर 1, दिस इज माई बुक. हियर दिस वर्ड इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वर्ड. एग्जाम्पल नंबर 2, that is her house. Here also that word is a demonstrative pronoun word. Let us see its third kind, that is relative pronoun. The words used for noun to express functions relating to who, which, that, whose, whom, etc. Relative pronoun के words वो word होते हैं जो noun की जगह पर express किए जाते हैं और ये इन वर्ड्स के फंक्शन को एक्सप्रेस करता है. वो वर्ड्स हैं who, which, that, whose, whom, etc. रिलेटिव प्रोनाउन को हिंदी में संबंध वाचक सर्वनाम कहा जाता है. एग्जाम्पल नंबर 1, द मैन who has just entered the room is my friend. Here who word is a relative pronoun. Number 2, the book that I bought is very costly. Here that word is also a relative pronoun. Now move to our fourth part, that is interrogative pronoun. The words used for noun to ask question. वो words जो noun के लिए यूज किए जाते हैं और जिनसे हम question पूछते हैं वो होते हैं interrogative pronoun. Interrogative pronoun को हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है. For example, number 1, who took my bag? Here, who word is a interrogative pronoun. Number 2, whom did you meet? Here also, whom word is a interrogative pronoun. Now move to our fifth kind, that is indefinite pronoun. The words used for noun in vague and general meaning. वो वर्ड्स जो नाउन के लिए यूज किए जाते हैं और वो तब यूज किए जाते हैं जब हमारे पास नाउन अननोन होती है. इसलिए इंडेफिनाइट प्रोनाउन को हिंदी में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है. एग्जाम्पल नंबर 1, ऑल द ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. हियर ऑल वर्ड इज यूज्ड फॉर ऑल ग्लिटर्स. अब हमें पता नहीं है कि कौन सा ग्लिटर है यहाँ पे, तो ये ऑल वर्ड क्या हो जाएगा? इंडेफिनाइट प्रोनाउन. मैंने बताया ना ये तब यूज होती है जब नाउन अननोन होती है, तो यहाँ नाउन है अननोन.
Second example, I will try to think of somebody who can help you. Here somebody word is a indefinite pronoun. Let us see our fifth kind, that is reflexive pronoun. Words used as form of personal pronoun for emphasize. वो वर्ड्स जो पर्सनल प्रोनाउन के लिए यूज किए जाते हैं उन पर और प्रेशराइज करने के लिए. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हिंदी में निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, I shall do this work myself. Here myself word is a reflexive pronoun. Number 2, she cut her finger herself. Here also herself word is a reflexive pronoun. Some more words of reflexive pronoun are myself, ourself, himself, herself, themself, yourself, etc. Let us see its seventh kind, that is distributive pronoun. The words used for individuals and objects referring to them as one at a time. वो words जो किसी इंडिविजुअल के लिए या ऑब्जेक्ट्स को एक ही समय पर एक ही चीज के लिए इंडिकेट करता हो, वो वर्ड्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हिंदी में विभाग बोधक सर्वनाम कहा जाता है. द वर्ड्स आर ईदर, नीदर, ईच, एवरी, नन, एनीवन, एटसेट्रा. एग्जाम्पल नंबर 1, ईदर ऑफ द सिस्टर्स इज स्टेइंग हियर. Here either word is a distributive pronoun. Number 2, neither of his arm is defective. Here neither word is also a distributive pronoun. Let us see its last part, 8th part, that is reciprocal pronoun. The words used to point out mutual relationship. वो words जो संकेत देते हैं किसी न किसी म्यूचुअल रिलेशनशिप का, वो होते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन. रेसिप्रोकल प्रोनाउन को हिंदी में परस्पर बोधक सर्वनाम कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, द ब्रदर्स लव ईच अदर. हियर ईच अदर वर्ड इज अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन. नंबर 2, इंडियंस शुड नॉट फाइट विद वन अनदर. हियर ऑल्सो वन अनदर इज अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन. Now all the pronoun and its kind are completed. I hope आपको ये समझ आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी. So thanks for watching.